रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थककर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसके मिलने का मजा भी आएगा। प्लीज गिव a huge round of applause to the present parents here. Good morning one and all present here. Respected Principal Sir, Principal Madam, Chairman Sir, and Honorable Chief Guest of today's program, our exuberant Director Sir, distinguished parents, teachers, and lovely students. Good morning. Again I said good morning to all of you. Good morning, sir. That's nice. You should keep this spirit till the end of this event, because it is the symbol of our institute's pride, our dignity, our decorum, because it is our strategy that we aim above the mark to hit the mark. That is the strategy of MSIS. We aim above the mark to hit the mark. It is a matter of great pride and honor to welcome you all to this special occasion of MSPSE 4.0's result. I request our chief guest of this event, our exuberant director sir, to have a seat along with the fellow parents. Please give a huge round of applause to our exuberant director sir. From Basavta to join our chairman sir to take today's chief guest seat along with our chairman sir and director sir. And Chairman Sachin sir, I also request you to join them. We welcome from core of our hearts to all the dignitaries and the parents and lovely students who took part in this MSPSE 4.0 examination and secured their top ranks in this examination. I would like to inform you that more than 700 students registered for this event, and it is just a beginning for our institute. Just as I have said in my opening remarks that we aim above the mark to hit the mark. Our first initially step has motivated us so much that we are deciding some future program also regarding this type of competitive examination. In this proceeding of MSPSE 4.0, I must tell you that more than 700 students participate and more than 108 students secure their top 10 ranks in their respective classes. 108 students. As someone has rightly said, that education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Education is the most powerful weapon. These students who took part in this examination have proved that they have outstanding talent in themselves, and they have proved this by securing their top ranks in this examination. I again thank you all the parents to show faith in our institute and join us on this prestigious occasion. This ceremony celebrates young minds who have used knowledge as their strength and perseverance as their path. It is really a wonderful achievement of these young minds. Parents, I assure you that you have a gifted talent along with you.
You can observe our all students who are seated along in the right side of yours. Your students are also so talented, so much God gifted that they have potential to join this institute, and that is your opportunity to join our institute, because this process is also conducted for this purpose. We are truly privileged to have our esteemed director sir as chief guest and dignitaries with us today. Your presence inspires our students and adds significance to this occasion. I will represent a fantastic quote in front of you students, which I observe in our director sir's approach always. गर्मी ना इंसान के खून में है, गर्मी ना मई जून में है, गर्मी इंसान के जुनून में है. The passion which our director sir has brought in front of you in shape of establishing a foundation class in a rural area. It is a great opportunity, I must say. It is a great opportunity because no one can imagine such world-class infrastructure along with so much talented, gifted teachers. It is a dream, really, I must say, in a rural area. Such type of institute establishment will be so beneficial for us. We always talk about that to prepare for foundation classes, we should send our students in Kota, Sikar, these type of sports. But we promise and we have aim that if there is a will, there is a way. One day, Singhana will also be recognized as the foundation classes iconic place. I assure you that. One day we will become a symbol of foundation classes, and the journey will always recognize from the NSIS. At the beginning point, the initial step which is taken by our director sir will lead this area to a flourishing place in perspective of foundation classes. Now moving ahead, I want to introduce you what is our core motive to conduct this examination. Our core motive was that we want to give opportunity to the talented student of this area so that they can also get opportunity to such type of education, such type of world-class standard education they can get. So that's why we conduct this examination to identify the talent in our surrounding areas and to announce the first segment of this reward ceremony. I will like to invite on the stage to honor class 5th students who secured the rank in top 10 students. Suman Della ma'am and Rakesh sir, please come on the stage. Nishi, daughter of Mr. Anil. Nishi, daughter of Mr. Anil, please come on the stage. The 5th rank goes to Nishi. Muskan, daughter of Mr. Mahendra Singh, please come on the stage. Muskan, daughter of Mahendra. 7th rank goes to Dax, son of Mr. Deepak Singh. 8th rank goes to Lakshya Saini, son of Mr. Mahesh. 9th rank student Divya, daughter of Mr. Dhanudhar Meena.
Sorry, along ninth rank also shared by Tamanna, daughter of Mr. Ajit. And I have an interesting fact in front of you. The 10th place, the 10th rank is joined by 5 students. Naksh, son of Mr. Subhas. Naksh, son of Mr. Subhas, please come on the stage. Students, don't rest your hands. Let's maintain the energy level of this campus. Himanshu, son of Mr. Satya Prakash. Arnav Daila, son of Mr. Sumit Kumar. Palak, daughter of Mr. Dharamveer. And Karan, son of Mr. Suvir Singh. These are the students who secure their rank among the Congratulations students and thanks parents to show your faith. Yes. We should always acknowledge the achievements. ये 5th क्लास का जो रिजल्ट है उसमें लगभग जो 100 स्टूडेंट के आसपास जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनमें से जो उत्कृष्ट सम्मानित किया जा रहा है। बेटा ये 4 to 10th रैंक में जो स्टूडेंट अभी सम्मानित हो रहे हैं, विद्यालय का जो प्रयास रहा है कि अपने क्षेत्र में जितने भी प्रतिभावान छात्र और छात्राएं हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल सके ताकि वो इसी क्रम में विद्यालय जो है लगातार इस तरह के एग्जाम कराता रहा है और कराता भी रहेगा। आप जितने भी महानुभाव अपने बच्चों के साथ यहाँ पधारे हैं, ये केवल विद्यालय ही नहीं आपके लिए भी बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला समय है कि आपके बच्चे ने आपको गौरवान्वित किया है, इस स्टेज पे लाकर के खड़ा किया है। आप ही फख्र से कह सकते हो कि हमारे बच्चे में काबिलियत है और उसी काबिलियत को परखने के लिए हमने इस तरह के एग्जाम जो है वो परफॉर्म करवाया है कि आपके बच्चे का जो रियल टैलेंट है वो हम बता सके कि आपके बच्चों जो है वो क्या डिजर्व करता है। इसी प्रयास में हमारा स्कूल जो है वो आईआईटी और नीट से संबंधित जो कोचिंग होती है उसके लिए एक प्रयास कर रहा है। जो बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध कोचिंग है जहां हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, कुछ एक अपनी आर्थिक कमजोरी से, कुछ निजी कारणों से अपने बच्चों को उस स्थान पे नहीं भेज पाते हैं। उसी का एक प्रयास जो है वो माता सर्वणी जो स्कूल है उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है अपने लोकल बच्चों के लिए कि वो भी यहाँ पर अपने सपनों को साकार कर सके। उनमें से बहुत से बच्चे हैं जो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको अपने सपने साकार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने दिया है। उसी प्लेटफॉर्म तक बच्चा पहुंचे उसी के लिए ये एग्जाम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें जो मेधावी बच्चे हैं
जैसे मैं बता रहा हूँ लगभग 5th क्लास में 100 से अधिक जो स्टूडेंट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उनमें से वो 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने टॉप 10 रैंकर से, उसमें मोर देन 10 स्टूडेंट आए हैं। देखो रिजल्ट से पता चलता है पोजीशन 10 है जिसमें स्टूडेंट 16 है, 16 बच्चे आए हैं। तो आप उनके टैलेंट का अंदाजा लगाइएगा कि भी किस कदर बच्चों में टैलेंट भरा पड़ा है, बस उन्हें तराशने की जरूरत है। हमने उसका एक छोटा सा प्रयास किया है कि आपके बच्चे का रियल टैलेंट जो है वो आपके सामने रखें और उस बच्चे के जो सपने हैं उन्हें हम साकार करें। इसके लिए उसकी जो नींव रखी जाती है, प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन क्लासेस, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगे चलते रहेंगे। अब मैं सीताराम जी सबसे निवेदन करूंगा कि वो नेक्स्ट क्लास का रिजल्ट जो है वो आगे घोषित करें। सचिन सर। is Yasodhara Naruka, daughter of Mr. Bhavani Singh. Applause students. The first ranker of class 5 student is Arnav Della. Arnav Della, daughter of Mr. Sumit Kumar. Please come on the stage. Congratulations. Arav Della, who secured the first rank in class 5. Congratulations. There are 12 students who secured their place in this top 10 rank category. There are 12 students. It shows that nowadays the competition has become so cutthroat. In 5th class, we observed 16 students and now 12 students. The student who secured 4th place in class 6 is Alok, son of Mr. Ghasiram, of Mr. Rakesh Keswani. We should appreciate achievements always. You know the spirit. Next student, Purvi Chauhan, daughter of Mr. Vikram Singh Chauhan. Pranjal, daughter of Mr. Suresh Kumar. Pranjal, daughter of Mr. Suresh Kumar. Anushka Sangwan, daughter of Mr. Ashwin Kumar. This girl secured 10th rank. And next student is Diksha. Now top 3 rankers of class 6 is top 3 of class 6. Third rank goes to Gunjan. Sharma. Pallavi, daughter of Mr. Ravindra Sharma, please come on the stage. Give her a huge round of applause, student. The girl is the first ranker of class 6 segment. For this outstanding result, she is the third ranker of class. मां शारदे के चरणों में नमन, माता सलोनी को वंदन,
इस विद्यालय प्रांगण में पधारे सभी देवतुल्य अभिभावकगण, मेरे सामने विराजमान भारत का उज्जवल भविष्य नन्हे बालक बालिकाओं, हमारे सभी विद्वान शिक्षक, विदुषी शिक्षिका और माता श्रवणी का पूरा परिवार, आप सबका मैं इस विद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की बात साधना से मंगल कामनाएं करते हुए मैं पधारे हुए अभिभावकों का पुनः तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वास्तव में शेखावाटी का ये झुंझुनू जिला शेखावाटी अंचल की एक अलग पहचान रखता है। पहले तो सुनते थे शेखावाटी का भरूट और शेखावाटी का गरूट, जहां चिपक जाता है जगह नहीं छोड़ता। एक पत्थर फेंकोगे तो सेना का एक नहीं तीन सैनिकों के ऊपर जाकर गिरेगा। इतनी बड़ी पहचान हमारे जिले ने दी है। मेरा वो जिला है, मेरा वो अंचल है। जब हम किसी दूसरे जिले में जाते हैं, क्यों मैं शिक्षक हूं, मैंने चूरू जिले में भी नौकरी की है, नागौर में भी की है, जोधपुर में भी नौकरी की है, और जहां भी मैं जाता था तो ये नर्स कहाँ की झुंझुनू से, ये मैडम कहाँ से झुंझुनू से, ये डॉक्टर कहाँ से झुंझुनू से, ये तहसीलदार कहाँ से झुंझुनू से। जब ये नाम सुनते थे तो हमें बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है कि यार झुंझुनू वाले तो वास्तव में ना राजस्थान में इंडिया में नंबर 1 है, और इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों का ये जोश जुनून जज्बा देख करके मेरा भी हौसला बढ़ गया है। मैं माता श्रवणी की कोख से पैदा हुआ, वो एक बालक था, पिताजी का साया उठ गया था, कच्ची झोपड़ी में पड़ा, पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं होती थी, खाने के लिए पूर्णतः बैलेंस डाइट नहीं होती थी। उन विषम परिस्थितियों में गुरुजनों के सानिध्य में रह करके 2 आंख सीखे, वो 2 अक्षर सीख करके कच्ची झोपड़ी में रह करके बड़े सपने पाले, बड़ी सोच रखी। मेरी माँ जिसने मेरे अंदर ऐसे संस्कारों का बीजारोपण किया कि बेटा जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, किसी का उधार लेकर के खा मत जाना। उन संस्कारों को मैंने हमेशा अपने चित्त पर रखा, ध्यान पर रखा, और मैंने ये संकल्प किया। मैं बार बार बच्चों को भी कहता हूं, मेरी माँ जब तकलीफ में होती थी, पीड़ा में होती थी, हमें किस तरह से उसने पाला पढ़ाया था, मैं हमेशा ही दिमाग में रखता था कि मैं बड़ा होकर के मेरी माँ को कभी मैं पीड़ा नहीं झेलने दूंगा, मैं माँ को सुख दूंगा, मैं माँ की खुशी के लिए पढ़ूंगा। और मैंने ऐसा ही किया। मैं पढ़ता था, अनपढ़ थी माता श्रवणी, लेकिन उसके विचार बहुत उम्दे थे। मैं स्लेट पर जब उसको दिखाता था कि माँ मैंने देखो ये लिखा है, क्या बोलती थी, मेरो बेटो तो बहुत होशियार, बहुत स्वरूप मांग लिखा है, ये मोटिवेशन देती थी मुझे। एक अनपढ़ माँ जब बेटे को ये कहेगा मेरा बेटा तो बहुत सुंदर लिख रहा है, तो आप ताजुब कीजिए कि मेरे अंदर कितना जोश और कितना जुनून भरा होगा। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, कभी बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करें, उसको कम नहीं आके, उसकी हिम्मत न तोड़ें, उसको हतोत्साहित न करें, उसको निराश नहीं करें, क्योंकि बच्चा होता है वो बिल्कुल सफेद कागज होता है। उस सफेद कागज पर जो आप उकेरोगे, आप जो लिखोगे, वही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। माँ है वो बच्चे की पहली गुरु है, पिता पहला गुरु है। जिस घर में बच्चों को प्यार दुलार से रखा जाता है, संस्कारों से रखा जाता है, मेरा ये मानना है कि वो पूर्ण पढ़ाई है। मैंने देखा बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन जाते हैं, लेकिन माँ बाप की कदर नहीं करते। तो वो पेड़ किस काम का जिसकी न छांव मिले न फल मिले, वो औलाद किस काम की जो माता को सुकून न दे सके, माँ बाप की बात को न सुन सके।
बार बार मैं बच्चों को भी कहता हूँ, माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, आप उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनके दिल से आत्मा में परमात्मा रहता है, उसकी दुआएं मिलेंगी। और जिस बच्चे ने ऐसा करना सीख लिया, माँ का आशीर्वाद दे लिया, वो खुद भी तैरेगा, माँ बाप को भी तैराएगा, समाज को भी तैराएगा, देश को भी तैराएगा। ये मेरा ध्येय है, ये मेरा मोटिव है, मेरा लक्ष्य है। मैंने जिया है, जो भी मैं कर रहा हूँ मेरे अनुभव से कर रहा हूँ। जब से मैं इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया हूँ, मैंने एक ही संकल्प लिया, एक ही ईश्वर से मेरी प्रार्थना रहती है, आराधना रहती है कि हे भगवान, मैं उस गरीबी में पैदा हुआ था, एक शिक्षा मेरे पास ऐसा हथियार था जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने बोलने के काबिल हूँ, बात रखने के काबिल हूँ। शिक्षा एक ऐसी निधि है, शिक्षा एक ऐसी दौलत है, शिक्षा एक ऐसा उपहार है, शिक्षा एक ऐसा संबल है जो आदमी को सक्षम बनाता है, मजबूत बनाता है, अपने पैरों पर खड़ा करता है। इससे बड़ा हथियार नहीं, और शेखावाटी ने साबित करके दिखाया है। मैंने महसूस की, जब मैंने स्कूल खोली तो लोग कहते थे कि सीबीएसई स्कूल चलाना बहुत मुश्किल काम है ग्रामीण अंचल में, लेकिन मुझे मेरे अंदर विश्वास था। मैंने अधिकांश लोगों को देखा है कि पहले वो झोपड़ी में स्कूल खोलते हैं, फिर वो टीन साइड में खोलते हैं, और फिर स्कूल चलने लग जाते तो वो बिल्डिंग बनाते हैं। मुझे मेरी काबिलियत पर विश्वास था, लोगों पर विश्वास था, और यहाँ के लोगों का मुझे पता था कि मेंटलिटी कैसी है। उसके अकॉर्डिंग मैंने शानदार बिल्डिंग बनाई, शानदार रिजल्ट दिए। आपके सामने परिणाम की फोटो लगी हुई, ज्यादातर बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं। मेरा मोटिव, मेरा जिंदगी का ध्येय कहने नहीं चाहिए, भगवान की दया से मेरी धर्मपत्नी भी सरकारी नौकरी करती है, मैं भी करता हूँ। 3 लाख से ज्यादा हमारी सैलरी है। अगर मैं चाहता तो आराम से रह सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जो मैं काम कर रहा हूँ, अब जो मेरा ध्येय है, जो मेरा लक्ष्य है, मुझे कोई धन्ना सेठ नहीं बनना, मुझे कोई जुगुल किशोर का बेटा पोता नहीं बनना। मेरा मकसद उन मेरी बेटियों के लिए, उन बच्चों के लिए काम करना है मेरा, कि जो सीकर जयपुर नहीं जा सकते, जिनके पास संसाधन नहीं, वो बच्चे कहां जाएं। मैं उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है। एक बार फतेह जी खड़ी हो मेरे सामने बैठे, ये टीम टोटल बाहर से लगी हुई है, और भी बहुत सारे टीचर हमारे पास, कम से कम 15 टीचर अलग अलग राज्य से, अलग अलग टैलेंट वाले टीचर हैं। जयपुर से हैं, प्रयागराज से है, कुरुक्षेत्र से है, रेवाड़ी से है मैडम। मतलब कहने का मतलब सिक्किम से हमारे पास टीचर है। ऑल ओवर इंडिया से जो क्रीम टीचर हैं उनको मैं अपॉइंट कर रखा है, और 1 साल से ज्यादा इनको काम करते हुए टाइम पर सैलरी दे रहा हूँ। और इनको छोटे परिवार, मेरे भाई बहन की तरह इनको सलूट करता हूं उनसे। और मेरा इनको एक ही कहना है कि पैसे तो पता नहीं आप कहां से क्या कमा लोगे, मैं आपको लाख दे रहा हूँ, 2 लाख भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर इस शेखावाटी अंचल में अगर आप काम करोगे, जो बच्चा पढ़ करके यहाँ से जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। और गुरु के पास इससे बड़ा कोई धन और दौलत हो नहीं सकती। बड़ी पहचान है, बड़ी उम्मीद के साथ कोई बच्चा यहाँ लेकर के आता है कि मेरा बच्चा गुरुजी आप पढ़ाओगे, इसको विद्वान बनाओगे, इसको काबिल बनाओगे। इस धरती पर एक शिक्षक ही ऐसा है जिसके ऊपर माँ बाप कितना बड़ा विश्वास करके बच्चा सौंपते जाते हैं। मेरा हमेशा एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य और एक ही ध्येय रहा है कि जो माँ यहाँ बच्चे को अंगुली पकड़ करके लाते हैं, मुझे माता स्वरूप दिखाई देती है कि इस बच्चे का कभी विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। उस मकसद को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कामयाब भी हो रहा हूँ और कामयाब होऊंगा, क्योंकि जिसका इरादा नेक है, मैं कोई मोटिव लेकर के चल रहा हूँ। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा बच्चा गांव में हो, कोई ऐसी लड़की हो जिसके भगवान ने माँ बाप को छीन लिया हो समय से पहले, पढ़ने में सक्षम नहीं हो, जिनके पास फीस का अभाव हो। मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ, करके दिखाता हूँ। उनको मैं निःशुल्क फ्री पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। बहुत से बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, करीब 10 बच्चे ऐसे जिनको मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज उनके माँ बाप नहीं है। तो मेरा फर्ज बनता है कि जो बच्चा मेरे पास पढ़ रहा था उसको मैं शिक्षा से वंचित न रहने दूं, ये मेरा मकसद है। मैंने
मेरे बूते से बाहर जा करके 10 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है। मार्च में उसका उद्घाटन करूंगा और आने वाले समय में मुझे अपने आप पर विश्वास है, मां सरमोनी पर विश्वास है, आप लोगों पर विश्वास है कि 2030 में सिंघाना झुंझुनू जिले में वो स्थान होगा कि ये शिक्षा के नाम से जाना जाएगा। ये मेरा ध्येय है, ये मेरा मकसद है। जहां चाह हुआ रहा, किसी ने सोचा नहीं था कि पहाड़ के तलहटे में जंगल में सीबीएसई स्कूल चलाना बहुत कठिन काम होता है, बड़ा मुश्किल होता है सीबीएसई को चलाना। और मैंने कंप्लीटली, आई एश्योर यू दैट आई रन दिस इंस्टीट्यूट कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम इंग्लिश खिचड़ी को लहरा लेनी अपन, मुझे क्वालिटी देनी है। मेरा बड़ा पेट नहीं, मेरा एक बेटा है, बहुत सिंसियर है, किसी प्रकार का नशा नहीं है। मेरी बेटी है, बहुत पढ़ी लिखी राइटर बन गई, आईएएस तो नहीं बन पाई, लेखिका बन गई है। और इसने किताब लिखी बहुत शानदार, नारी अब तुम बदल जाओ, उसका मैं विमोचन कराऊंगा कुछ ही दिनों में। तो शिक्षा एक अनमोल रत्न है, उसको लेकर के आगे बढ़ना है। आप लोग आए हो, मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, मैं मेरी मन की बात कहना चाहता था कि आप उस पर विश्वास जैसे पहले बनाया वैसे बनाए रखें। मैं भी आपके विश्वास को नहीं टूटने दूंगा, ये मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है कि आप जिस उम्मीद से यहाँ आए हो, बच्चा यहाँ पढ़े वहां पढ़े, मैंने जिंदगी के उसूल रखे। आज तक मैंने मेरे मुंह से और मेरी जो पूरी टीचर्स टीम खड़ी है, हमने आज तक किसी स्कूल की बुराई नहीं की, किसी स्कूल वाले की बुराई नहीं की। हमारा मकसद, हम अच्छी शिक्षा संस्कारों के साथ देना चाहते हैं। हमारे पास आएगा उसको हम पढ़ाएंगे, हम क्या पढ़ा रहे हैं वो दिखाएंगे। दूसरे की बुराई करके, किसी की आलोचना करके, किसी को नीचा दिखा करके हमें आगे नहीं बढ़ना है। हम तो वो काम करना चाहते हैं कि शिक्षा का मखौल नहीं उड़े, शिक्षा के साथ मजाक नहीं बने, किसी अभिभावक को इस बात को लेकर के अफसोस नहीं हो कि मैंने तो गलती कर दी कि बच्चा यहां एडमिट करा दिया। इस स्कूल का पहला विद्यार्थी अंकित 4 बोर्ड से था, विनोद का लड़का सब जानते होंगे। वो थोड़ा नौकरी ढंग से नहीं कर पाता था, जो भी परिस्थिति सब समझते हैं। उसकी मां आती थी, कभी भी उसकी टीम टाइम पर फीस नहीं आई, फिर भी मैं कहता था इस बच्चे को पढ़ाओ, इंटेलिजेंट है। उस बच्चे को हमने बहुत तरासा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पहले अटेम्प्ट वो लड़का लेफ्टिनेंट लगा है, गोट गांव का है, पहले बैच का बच्चा लगा। बहुत से बच्चे ऐसे निकल के जा रहे हैं। ये ज्योतिराव मेरे दोस्त की लड़की है, ये चेन्नई से इसने आईआईटी में करके अच्छी पोस्ट पर गई। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों को जहां भी पढ़ाएं, घर पर जरूर उनको अच्छे संस्कार दें, तभी पढ़ाई का मूल्य होगा, तभी पढ़ाई की वैल्यू होगी। मैं आप सबका पुनः इस विद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करते हुए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सर की बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, और एमएसआईएस इस दूध को पिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ता है, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। थैंक यू सर। नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट अवार्ड्स कैटेगरी फॉर क्लास 7 एंड द 4th rank goes to मोहित son of Mr. Sunil, Sir Vijender Singh. Students, let's continue your applause. Aisha, daughter of Mr. Mukamchand, I will continue. Mr. Naresh Singh, Lakshya Singh Narwan, Parveen Singh, the campus student.
Now I would Adia, daughter of Mr. Vinod Kumar, the girl secured second rank in this class. Please come on the stage, Zia. Congratulations, Divyana. सुना है कि भी सीकर में, जयपुर में, कोटा में, इसमें बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं रही है जो आईआईटी और नीट मेडिकल की तैयारी करवाती हैं बच्चों को। उसी तर्ज पे यहाँ लोकल क्षेत्र में, जैसे डायरेक्टर सर ने कहा कि इस शेखावाटी के अंचल में वो बच्चे जिनके पास टैलेंट है पर सुविधाएं नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है, कुछ अन्य कारण है जिससे वो वहां नहीं जा सकते, ऐसे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। मैं खुद यहाँ बोर्डरी पढ़ाता हूँ, मैं खुद टीचर हूँ, यहाँ बोर्डरी पढ़ाता हूँ। पीछे मैं सीएलसी सीकर में पढ़ाता था पहले। तो आप कुछ अभिभावक के दिमाग में ये भी रहे कि क्षेत्र में खुला है, पता नहीं टीचर किस तरह के होंगे, आप उससे आंक लीजिएगा। कोई ये आंके कि भाई हो सकता है कि इनके पास टीचर, मैं पीछे जब सीकर में था सीएलसी में वही टीचर हूँ, वहां मैं सीकर में पढ़ा रहा था सीएलसी में, आज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो टीचर आप उस क्वालिटी से आंक लीजिएगा कि किस क्वालिटी के टीचर रखे गए। दूसरी बात है, जो पैटर्न, जिस पैटर्न पे जितनी चीजें होती हैं एग्जाम्स की, वही पैटर्न हम भी करवाते हैं। वर्तमान में भी हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चालू है, बच्चे दे रहे हैं। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन भी दूंगा इसके साथ कि यदि आपके पास आपका खुद का कोई बच्चा है जो तैयारी कर रहा है और वो यदि टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहे तो वो आए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे। हमारा उद्देश्य, जैसे डायरेक्टर सर ने कहा था, बिजनेस नहीं है। बिजनेस यदि होता तो ये स्कूल काफी थी उसके लिए, इस तरह का प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता नहीं थी। मैं मतलब नहीं बताना चाहिए इस तरह से ऐसा, पर मैं बताता हूँ। वर्तमान में कोचिंग चलाने से संस्था अप्रोक्स 30 लाख रुपए घाटे में जाएगी। हम तो पेमेंट चार्ज करते हैं सर, शिक्षक हूं मैं, हमें तो पेमेंट जो है जो चाहिए वो मिलेगा संस्था के, बच्चे इतने हो या ना हो उससे हमें थोड़ी ज्यादा मतलब होता है, हम तो शिक्षा दे रहे हैं। संस्था 30 लाख रुपए घाटे में जाएगी, तो ये सब ने कोई बिजनेस तो नहीं बनाया होगा। मैं आपको इसलिए कहता हूं, मैं भी आपकी तरह अभिभावक भी हूं सर। मेरा खुद का बेटा यही पढ़ता है 9th क्लास में, एक प्री फाउंडेशन क्लासेस चलती है उसी में पढ़ता है। मेरा बड़ा बेटा यहीं से पढ़ के गया है, आज वो नर्सिंग कर रहा है, सेकेंड ईयर में वो वहीं से पास आउट है 85% के साथ। एक शिक्षक हूं सर, मुझे पता है कि बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहिए। मैंने ये संस्था इसी साल ज्वाइन की, लास्ट ईयर आया था मैं, जब कोचिंग स्टार्ट हुई थी, मेरे बच्चे स्टार्ट से यही पढ़ रहे थे। इससे मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं यहां से कि सर स्कूल सारे अच्छे होते हैं, स्कूल वो प्रांगण है जहां बच्चे को निखारा जाता है। बस कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका गोल बड़ा होता है, जिनका उद्देश्य बड़ा होता है, उन्हीं में से एक संस्था है। मैं टीचर हूं तो मैंने अच्छे से जांच करके किया चुनी होगी बच्चे के लिए, तो मैंने यही संस्था चुनी। आज मैं खुद जब इस प्रोफेशन में हूँ, मैं खुद इस लाइन में आकर के यही मैंने ज्वाइन किया है। मैंने देखा था कि यहाँ के जो मैनेजमेंट सिस्टम है उनका उद्देश्य है साथ के साथ बच्चों को बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो उसी श्रृंखला में मैं यहाँ करके जुड़ा हूँ। आप जितने भी अभिभावक बैठे हैं, मैं आप ही के जैसा हूँ, आप ही के जैसे मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, बस मैं यहाँ एक टीचिंग फैकल्टी हूँ। तो मैं आपको एक बात जो डिलीवर करना चाह रहा हूँ, यहाँ का जो उद्देश्य है, माता सरवणी कैरियर पॉइंट करके जो यूनिट MSIS ने स्टार्ट की है, उनका जो उद्देश्य है अपने बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना। उसी तर्ज पे एग्जाम हुई थी, आपके टैलेंटेड बच्चे जो है वो निखारे गए। आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे में क्या टैलेंट है। आप उसे जो भी सपना रख रहे हो, उसे IAS बनाना चाह रहे हो, RS बनाना चाह रहे हो, डॉक्टर बनाना चाह रहे हो, इंजीनियर बनाना चाह रहे हो, तो उसकी एक छोटी सी यूनिट डॉक्टर और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए MSCP करके यूनिट यहाँ स्टार्ट हुई है। अपने बच्चे को सब फाउंडेशन क्लासेस में लेके जाइएगा। यदि आपका बच्चा टैलेंट रखता है तो उसे फाउंडेशन क्लास में लेके जाओ, उसके टैलेंट को निखारो।
ताकि वो 12वीं के साथ ही आपको रिजल्ट दे दें। विद द 12th रिजल्ट दे। हमारे पास भी इस तरह के बच्चे हैं प्रांगण में, यहीं से 10th पास आउट थे, वो हमारे पास आए 11th में, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो नेक्स्ट ईयर जब वो 12th में आएंगे 12th के साथ, सर बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, विद द 12th वो डॉक्टर हो जाएंगे, विद द 12th वो इंजीनियर हो जाएंगे, वो IIT क्लियर कर देंगे, वो नीट क्लियर कर देंगे। यहाँ संस्था में भी बच्चे हैं, 1 साल का इंतजार होगा, क्योंकि अभी वो 11th में हैं, 11th का एग्जाम दे रहे हैं, वो 12th में आएंगे, वहां से वो आपको रिजल्ट भी देंगे। ओवरऑल मैं आपको इस मन से ये कहना चाहता हूं, MSCP एक वो प्लेटफॉर्म यहां तैयार हुआ है कि आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। ये कोई बिजनेस अथॉरिटी सिस्टम नहीं है। मैं बार बार आपसे ये इत्तला कर रहा हूं कि मैं भी आपके जैसा अभिभावक हूं, यहाँ टीचर हूं, पर उससे पहले मैं अभिभावक हूं, यहाँ मेरे बच्चे पढ़े हैं यहाँ पे। संस्था ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है, आप इसका फायदा उठाएं, अपने बच्चों को जो सपने देख रहे हैं उनको पूरा करने का मौका दें। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भी भाषण चालू हो गया है, तो भाषण नहीं है, मेरे खुद के ये अनुभव हैं जो मैंने आपसे साझा किए। तो MSCP का जो उद्देश्य रहा है उसका आप अपना लाभ उठाएं, अपने बच्चों को यहाँ कैंपस में बढ़ाएं। मेरे साथ ही कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी अभिभावक गण हमसे MSCP के बारे में जानना चाहे, हम क्या दे रहे हैं, किस तरह का सिस्टम है, क्या क्या प्रोसेस है, हम अवेलेबल है यहाँ। MSCP की पूरी टीम जो आपके फ्रंट में बैठी हुई है। प्रोग्राम के 10 बाद आप हमसे मिल के जाना चाहते हो, कुछ भी बातें पूछना चाहते हो, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Mr. Nagendra. Next student is Kartik, who secured 5th rank. Kartik, now Mr. Sanjay, please come on the stage. भाजी वो फिर मैं ले लूँगी वीडियो। There are 14 students in this class segment who secured the top 10 ranks. 14 students. The cutthroat competition exists in each and every class, and that is the motive of our examination. Next student, Kartik, son of Mr. Sanjay, Ritesh, son of Mr. Ashok Kumar, Ritesh, son of Mr. Mukesh Kumar, please come on the stage. Next student is Anuj, son of Mr. Mukesh, Anuj, son of Mr. Mukesh. Next student is student, don't stop your clapping. Maintain the spirit, the energy level of the campus. Once, son of Mr. Sandeep. Once, son of Mr. Sandeep. Aryan Godara, son of Mr. Vijay Singh. Aryan Godara. These are the students among 4th to 6th rank. 4th to 6th rank. Now 7th rank. Yogesh, son of Mr. Tej Narayan. Yogesh, son of Mr. Tej Narayan, please come on the stage. Barkha, daughter of Mr. Dharamveer. Barkha, daughter of Mr. Dharamveer, please come on the stage. The student secure 8th rank. Barkha secures 8th rank. Next student Manav, who secured 9th rank in this class. Manav, son of Mr. Jitendra Kumar, please come on the stage. Manav, son of Mr. Jitendra Kumar. Arman Solara,
Cholara, son of Mr. Satyavir Singh, the student secured 10th rank in class 8. Arman Cholara. Now the third rank in the 8th class segment, Mr. If Sophia Patel. Third rank goes to Vinay Kumar, son of Mr. Manish Kumar. Third rank in class 8. Vinay Kumar, son of Mr. Manish Kumar. Second rank in 8th class, Jia Dagar, daughter of Mr. Ravinder Singh Dagar. Jia Dagar, daughter of Mr. Ravinder Singh Dagar. Please come on the stage. The girl secured second rank in 8th class. And the first rank goes to Kunal, son of Mr. Manish. Kunal, son of Mr. Manish, please come on the stage. Congratulations students for your outstanding performance. Thanks a lot, Director Ma'am, to felicitate the students. Felicitate the students. Now I would like to invite the students from class 6 to 8 girls to perform their song Mera Karma. Because I think it's time to give you a dose of entertainment. सुप्रभात सम्मानित मंच, सम्माननीय शिक्षकगण एवं प्रिय अभिभावकगण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सौम्या अपने मित्रों के साथ आज आप सभी के समक्ष एक गायन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
इसी मोड में फोटो Our next talented चेंज मत करना member of this MSIS team, Mr. Logendra sir, NIT from Kurukshetra. Mr. Logendra. He is APJ Abdul Kalam of this campus. Logendra sir. After Director sir, to whom I must consider the ideal of simplicity. Logendra sir, please come on the stage. Mr. Kushal, physics from Kota. The physics faculty of our team, Mr. Kushal. Mr. Sandeep Yadav from Pilani, NET JRF. Mr. Sandeep Yadav, our commerce faculty from Pilani, a well qualified, decent personality, Mr. Sandeep Yadav. And our next faculty, Ramesh sir, who is standing beside me, I would request him to join the stage also. He is a biology teacher of our foundation team. Parents, our motive to represent our faculty in front of you, to show you that how talented they are. If anyone, I am here, put this stage openly that if anyone asks any question from this faculty, I hope they will satisfy you with their outstanding wisdom. Is there any query from any parents? This is our full of potential team, and now I would like to ask any faculty who want to share his thoughts. Logendra sir. First of all, Logendra sir. Venerable stage with amenity, thoughts and souls of prosperity of the overall dignity knowledge. All the parents who are present here to provide the blissful image of those blessings. That blessings, those have been provided by that goddess from this rural area, Mata Shravani, to his son, to provide the grass-rooted immense knowledge to a seed that developed into a seedling, and right now that seed is being grown with a big tree. Those moral values that have been given by our forefathers to give knowledge, not education, that may enhance your career from grassroots level to a big amenity to provide humanity to the society. Nice saying by those ancient and saints of our society. रूप यौवना संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्या विहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका. The person who doesn't have knowledge, I'm not asking about education. The person who doesn't have knowledge, maybe he has born in a prosperous family, but in the lack of knowledge, he is just like flower of tulip that may be good looking from the outside, but can't give fragrance. Path of immunity, path of prosperity that have been grown in the lap of Aravalli. I don't think anyone of has thought about the process that such kind of immense institutes may be grown in this area. I concluded that the exam
that was conducted on 18th in this premise. Most of the participants belong to the goddess or girl child participants, and nicely science by our forefathers and in our culture. If we only provide education, it can't be produce the wage of overall development of a personality. But if we will contribute and indulge that imbibe knowledge with our culture, that will prosper all the fruits of that big tree. If personalities like Guru Nanak Dev, if Mata Gujri and Mata Tripta Devi, if wouldn't belong to that community, we won't have got Guru Nanak Dev. If Mata Gujri wouldn't have nourished the seed to her child, we wouldn't have get Guru Gobind Singh. If Mata Vidyavati Devi wouldn't embrace the path of immunity to his child, we wouldn't get the Chandrasekhar Azad to provide the veins and critical forms of revolution in this grounded nation of ours. Devoted work. If Mata Ladpa Devi wouldn't give the path of pure humanity to his child, Sardar Patel, we couldn't be able to unite our nation in a single path of humanity. If Mata Sumitra Devi couldn't let her child and to his immunity as a part of son of Yogi Adityanath, you wouldn't get such kind of immunity to unite a big state that can hold the law and order in safety. If that goddess lady Ashyama couldn't provide the path of prosperity of knowledge to his child, we wouldn't be able to get the scientists just like Dr. Abdul Kalam. These paths remains, and undoubtedly it won't be the renegade if Mata Shravani couldn't give the path of knowledge to that seed. And don't think, see, there are many obstacles, many adverse circumstances that are encountered in every family. And there is no oversaying if I would say, अगर ऐसी परिस्थितियां डायरेक्टर सर के पास भी हैं और इन्होंने तो ऐसी परिस्थितियां झेली हैं, उसके बाद भी उस प्रबल पत्थर की तरह खड़े हैं, और इनके लिए अगर ऐसा कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। शांताकारम भुजग शयनम, चारों ओर विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी, चाहे वो फैमिली हो चाहे आउटसाइड में हो, किसी प्रकार की किसी में झेलनी पड़े, फिर भी वो अटक और प्रिजर्वेशन की तरह खड़े हुए हैं। एडिसन ने सही कहा था, 1% इंस्पिरेशन प्रोवाइडेड, 99% preservation is will be achieved by a person. Talent is born, only 1% inspiration is taken out. 99% is preservation, means sweating that he has done by his or her hard work. Thank you. What a flabbergasted wording by our most talented faculty of this institute, Mr. Natendra sir. Now I would request Piyush ma'am to deliver his speech. गुड मॉर्निंग एवरीवन। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। इसका मतलब एजुकेशन और स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग मैं समझाना चाहती हूँ कि जब एक माता पिता अपने बच्चे को एनरोल करते हैं किसी भी स्कूल में, तो वो उस पिंजरे से उसे बाहर निकालते हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो अनएजुकेशन हो, चाहे वो किसी तरह का जो उस बच्चे के आगे की ज़िंदगी में रुकावट डालता है। लेकिन एक टीचर क्या करता है? एक टीचर उसके दिल से ये पिंजरा बाहर निकालता है कि तुम कर सकते हो। अगर हजारों लाखों बच्चे कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। और इस रोल में टीचर का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो उस बच्चे को आत्मविश्वास दिलाता है। क्योंकि हमेशा सोसाइटी
जनरली जब आप गांव वगैरह से आते हैं तो सोसाइटी कहती है कि नहीं नहीं, गांव का बच्चा कैसे इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं, इतने एजुकेटेड टीचर्स हैं, वो तो आपको बताते हैं कि चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी है, अगर सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सुप्रभात सभी को। मैं समता श्रीवास्तव, आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस इस स्कूल के साथ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप सभी की तरह जो भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, मैं भी एक माँ हूँ, बहुत छोटी सी बच्ची है मेरी। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया बहुत कम उम्र में, तब लगा बहुत आगे बढ़ना है, बड़े बड़े डिसीजंस लिए। पर जब माँ बने तो एक नया डिसीजन था लाइफ में, और वो डिसीजन था अपने बच्चे के लिए एक सही स्कूल चुनना। वो स्कूल जहाँ सिर्फ एजुकेशन की बात ना हो, जहाँ सिर्फ मार्क्स की बात ना हो, उस बच्चे को एक नरिशिंग मिले, जहाँ वो बच्चा हमारा कल्चर सीखे, हमारा ट्रेडिशन सीखे, डिसिप्लिन सीखे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जिसे शायद आप सहमत होंगे, जो एक बच्चे की माँ बहुत बेहतर समझती है, एक सेफ एनवायरनमेंट मिले। मेरे बच्चे शुरू से नर्सरी क्लास से यहाँ पढ़ती है, और हर बार मैंने ये महसूस किया है कि जितना प्यार शायद वो सब घर पे नहीं दे पाती, वहाँ वो प्यार उसे यहाँ की मदर टीचर्स देती है। अपने साथ बैठाना, खिलाना, सिखाना, उसे स्कूल आना पसंद है, क्योंकि यहाँ उसे वो प्यार मिलता है, वो दोस्त मिलते हैं जिसे वो घर में चाहती है। कई बार वर्किंग वूमेन होने की वजह से वो टाइम में नहीं दे पाती उसे, पर मेरा बच्चा जब यहाँ आके बहुत चीज़ें सीखता है तो मन को बहुत प्रसन्नता होती है। और शायद मेरा मानना है कि जब नींव बहुत मजबूत हो तो इमारत तो मजबूत बनेगी ही। धन्यवाद। Thank you, ma'am, and thanks all the faculty who graced this stage by their presence. Thank you very much. Please come on the stage. Sorry, Anshul, stop. You secured third rank, beta. There are more than 2 students on third rank. I apologize. I beg your pardon for this mistake. The fourth rank goes to Himil. Student of 9th class, Himil Rajesh Kumar. Himil, please come on the stage. Dr. Samir Singh. The 6th rank goes to Hitesh Kumar, son of Mr. Ashok Kumar. Hitesh Kumar, son of Ashok Kumar, please come on the stage. The stage. Sakshi, daughter of Mr. Manoj Kumar. The girl secured 7th rank. The 8th rank goes to Neha, daughter of Mr. Ravindra. 8th rank goes to Neha, daughter of Ravindra. Please come on the stage. 9th rank goes to Priyanshi, daughter of Mr. Mahesh Kumar. Priyanshi, daughter of Mahesh Kumar. Please come on the stage. The girl secured 9th rank. Next candidate, Komal, daughter of Mr. Pawan Kumar. She is also on 9th rank. And the 10th rank goes to Anand, son of Mr. Sushil Kumar. Please come on the stage. Anand, son of Mr. Sushil Kumar. These are the students who secure 4th to 10th rank in class 9. Now I will announce the top 3 rank in class 9, and as I said before that by mistake I announced the 4th rank. There are 2 students who secured 3rd rank, and this type of cutthroat competition really motivate us as parents also, that nowadays you cannot take things for granted.
The third rank goes to Sanaya Chaudhary, daughter of Mr. Mahesh Chand Jat. Sanaya Chaudhary, daughter of Mr. Mahesh Chand Jat, and Anshul Kumar, son of Mr. Balbir Singh. These two students secured third rank. Second rank goes to Namantika, daughter of Mr. Mukesh. Namantika, daughter of Mr. Mukesh. And the first rank goes to Pooja Jevaria. Pooja Jevaria, daughter of Mr. Sanjay Jevaria. Please come on the stage. This girl secured the first rank among the 9th class students. Please give her the huge round of applause. Thank you, Khushbu ma'am, to felicitate the students. Give them huge round of applause, students. Now, I would request the principal ma'am to come on the stage to felicitate the class 10th students. Is Abhinav Sharma, son of Mr. Vijay Sharma. Abhinav Sharma, son of Mr. Vijay Sharma, please come on the stage. Fifth rank is to Anvi, daughter of Mr. Ramesh Kumar. Fifth rank goes in class 10 segment to Anvi, daughter of Mr. Ramesh Kumar. Please come on the stage. Sixth rank goes to Nisha, daughter of Shopal. Nisha, daughter of Mr. Shopal, please come on the stage. The girl secured 6th rank. Next, 7th rank goes to Vansika, daughter of Mr. Mahit Man. Vansika, daughter of Mr. Mahit Man. The girl secured 7th rank in class 10. 8th rank goes to Naman, son of Mr. Mukesh Kumar. Naman. Students, are you feeling lazy? Naman, son of Mr. Mukesh Kumar. Riya, daughter of Mr. Ramesh Chand. The girl secured 8th rank. Riya, daughter of Mr. Ramesh Chand. Next student, Hitesh, son of Mr. Naresh. Hitesh, son of Mr. Naresh. The student secured 9th rank. And on 10th rank, there are two students. Vikas, son of Mr. Jayaprakash. Vikas, son of Mr. Jayaprakash. And Manish Kumar, son of Mr. Kishanveer Singh. Manish, son of Mr. Kishanveer Singh. Please come on the stage. The top 3 rank in class 10 segment is the 3rd rank goes to Preeti Kumari, daughter of Mr. Surinder Singh. Preeti Kumari, daughter of Mr. Surinder Singh. Please come on the stage. The girl secured 3rd rank in class 10. Second rank goes to in 10th class Devesh Kumar, son of Mr. Sispal.
Devesh Kumar, son of Mr. Sishpal, please come on the stage. And the first rank in class 10 segment goes to Bhumika, daughter of Mr. Kundan Lal. Bhumika, daughter of Mr. Kundan Lal, please come on the stage. The girl secured first rank in class 10 segment. Thank you, guardians and parents, to show your faith in this process. एक बार बुला लो तो सुना है मैं। Next class is class 11th students. There are 10 students who secured 10 ranks in this class and 4th rank. Before I announce the 4th rank, I would like to invite our chairman sir again on the stage to felicitate the students. Give a huge round of applause to our chairman sir. Students, show your presence. Each and every student, I am observing from the stage your energy level. Daughter of Mr. Shyam Babu. Kariska, daughter of Mr. Shyam Babu, please come on the stage. The 5th rank goes to Sahil Saini. Sahil Saini is from Mr. Ramesh Saini. Please come on the stage. In class 11 segment, I am announcing the name of 4th rank and 5th rank. Is there any parents, any guardian, any student from class 11 segment is present whose name has been announced previously? I am repeating the name again. Kanika, daughter of Mr. Shyam Babu, Sahil Saini, son of Mr. Ramesh Saini. Sahil Saini, 2nd rank. Sahil Saini. And another 2nd rank is Anjali Meena. Kanika, daughter of Mr. Shyam Babu. Is Kanika present in this campus? Kanika. Kanika and Sahil Saini secured 2nd rank in class 11 biology segment, and the 3rd rank goes to Anjali Meena. 3rd rank goes to Anjali Meena. Anjali Meena, please come on the stage. Anjali Meena, daughter of Mr. Vijender. This girl secured 3rd rank. फोटो बना। And the first rank, there are 3 students in 11th class. Biology segment, there are 3 students who secured 1st rank.
There are 3 students. The first rank goes to Elvis, son of Mr. Rajkumar. Second student Sumit Payal, son of Mr. Mukesh Payal, and third student Sakshi, daughter of Mr. Rakesh. These 3 students secured first rank in 11th class. Students, clap your hand. Kunyaung. Kunyaung. Elvis, Sumit Payal, Sakshi. These 3 students are toppers in 11th biology segment. Elvis, the fourth rank goes to in 11th class Diksha, daughter of Mr. Rajesh. Diksha, please come on the stage. Diksha. Kritika Dara, daughter of Mr. Rakesh. 5th rank in 11th class Kritika Dara, daughter of Mr. Rakesh. Please come on the stage. And there is another student of 5th rank, Mohit, son of Mr. Mahesh. Mohit, son of Mr. Mahesh, please come on the stage. Rahul, son of Mr. Surendra. Rahul, son of Mr. Surendra. The 5th ranker student in class 11th biology. Rahul, son of Mr. Surendra. Now, student from class 11th maths. Class 11th maths. The 4th rank goes to Arav, son of Mr. Rajesh. Arav, son of Mr. Rajesh, please come on the stage. Fourth rank goes to next student, Khushi, daughter of Mr. Dalit. The girl secured 5th place in math segment. Khushi, daughter of Mr. Dalit, please come on the stage. Khushi secured 5th rank in class 11th TCM. Dinesh Kumar, son of Mr. Khaliram. Dinesh Kumar, son of Mr. Khaliram. There are 3 students on 5th rank, Khushi, Dinesh Kumar and Vishal. Vishal, son of Mr. Vidyadhar, please come on the stage. Vishal, son of Mr. Vidyadhar. On 6th rank there are 2 students, Priyanshu, son of Mr. Rajveer. Priyanshu, son of Mr. Rajveer, and Aryan, son of Mr. Krishna Kumar. Aryan, son of Mr. Krishna Kumar, please come on the stage. In class 11 PCM, the student who secured 3rd place is Hitesh. Hitesh, son of Mr. Hazarilal Saini, please come on the stage.
Hitesh Chanchal, daughter of Mr. Vijendra, please come on the stage. This girl secured second rank in PCM. Chanchal, son of Mr. Vijendra, please come on the stage. And on the first rank in 11th maths, Aman Somra, son of Mr. Sanjay. Aman Somra, students, show your presence. Aman Somra, congratulations students. Thank you, Chairman sir. Before announcing the last segment of class 12 results, I would like to invite our principal sir, Mr. Ajay Kumar, to felicitate the award. Principal Ajay sir, please come on the stage to felicitate the award top and have missed the opportunity. I assure them that they will be felicitated on the stage after the completion of this segment. So maintain your presence. A student who secured 4th rank in this class 12 segment, Himanshu, son of Mr. Shyam Babu. Himanshu, son of Mr. Shyam Babu. This student participated in biology segment in class 12 and secured 4th rank. Student is Pradeep, son of Mr. Rajesh Kumar. Pradeep, son of Mr. Rajesh Kumar. The student secured 5th rank in class 12. And next student Sumit Saini, son of Mr. Shishram. The old students and parents along with them, please come on the stage. Students, we have reached in the final segment of our ceremony. So now you should show your energy on premium level. Congratulations students. Now top 3 students in this category. 3rd rank, there are 3 students on 3rd rank. Dimple Kumari, daughter of Mr. Rajesh Kumar. Dimple Kumari, daughter of Mr. Rajesh Kumar, please come on the stage. The girl secured 3rd rank in class 12. Another student, Lucky Gujjar, son of Mr. Jile Singh. Lucky Gujjar, son of Mr. Jile Singh, please come on the stage. Rahul, son of Mr. Sandeep. Rahul, son of Mr. Sandeep,
please come on the stage. These three students secured third rank in class 12 category. On second rank, there is a girl student, Nikita, daughter of Mr. Rajesh. Nikita, daughter of Mr. Rajesh, please come on the stage. The girl secured second rank in class 12. And first rank goes to Jatin, son of Mr. Karamveer. Jatin, son of Mr. Karamveer, please come on the stage. Congratulations students for your outstanding performance. Now the students whose parents joined this program late, I announce the name. First of all, Naks, son of Mr. Subhas. Naks, son of Mr. Subhas from class 5th. Please come on the stage. Naks. Another student from class 5th, Himanshu, son of Mr. Satya Prakash. Himanshu, son of Satya Prakash. Anushka Sangwan, daughter of Mr. Ashwini Kumar from class 6. Anushka Sangwan, daughter of Mr. Ashwini Kumar. Kirti Keswani, daughter of Mr. Rakesh Keswani. Kirti Keswani, daughter of Mr. Rakesh Keswani. Diksha, daughter of Mr. Krishna Kumar. Diksha, daughter of Mr. Krishna Kumar. Alok, son of Mr. Ghasiram. Alok, son of Mr. Ghasiram. Lakshay Singh Narwan, son of Mr. Naresh Singh from class 7. Pramveer Singh, son of Mr. Virender Singh from class 7. Ritik Jangid, son of Mr. Kuldeep from class 7. Manav, son of Mr. Jitendra Kumar. Manav, son of Mr. Jitendra Kumar. तो आप मंच पे आके अपना सर्टिफिकेट और अपना ट्रॉफी लेके जा सकते हैं. एनी पेरेंट्स, एनी स्टूडेंट. Now I would like to request to our respected principal sir to deliver
a lot of thanks on the stage. सबसे पहले तो मां शारदे को नमन, उन वीर शहीदों को नमन जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन सैनिकों को नमन जो आज भी माइनस टेम्परेचर में हमारे देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही बाहर से पधारे हुए अभिभावक बच्चों को माता सोनी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि उन्होंने इतना कीमती समय दिया और मुझे पेरेंट्स का, अभिभावकों का ये जो उत्साह है देख करके बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस ग्रामीण अंचल के अंदर माता पिता के अंदर अपने बच्चों की प्रोग्रेस को लेकर के इतना उत्साह मैंने शायद पहले कभी नहीं देखा। तो ये चीज देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मुहैया कराएं। सुकरात ने कहा ना कि आपको अगर शिक्षा के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर अपनी थाली भी बेचनी पड़े ना तो बेच दो, क्योंकि शिक्षा से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको बच्चे के लिए वो स्थान तलाश करना है जहां उसको समुचित शिक्षा व्यवस्था दी जा सके, क्योंकि आजकल ये भी बहुत ट्रेंड बना हुआ है कि हम बच्चों को सीकर डालेंगे, जयपुर डालेंगे, कोटा डालेंगे। आप लोग डेली अखबार में पढ़ते हो कि ग्रामीण अंचल से गए हुए कितने सारे बच्चे नशे के शिकार होकर के वहां से उस स्थिति में वापस आते हैं जो पेरेंट्स के कवर में नहीं रहते। इसलिए मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि मैं नहीं कहता कि आप माता सोनी स्कूल में एडमिशन कराओ या माता सोनी कोचिंग में एडमिशन कराओ। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि एक बार आप कोटा सीकर जरूर जाएं, फिर एक बार माता सोनी स्कूल या कोचिंग में आप आए और आपको जो बेहतर ऑप्शन मिले वो ऑप्शन सेलेक्ट करें आप। बट मेरा ये विश्वास है कि अगर एक बार आप अपने माता सोनी स्कूल का विजिट किया और अपने बच्चों को 2 से 3 दिन की क्लास दिलवाई तो मेरा विश्वास है कि आप दूसरी जगह जाने का नाम ही नहीं लेंगे। ये मेरा विश्वास है। बच्चों के लिए भी मेरा एक संदेश है। बच्चों, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो जिंदगी है वो एक पतंग की तरह है। क्यों है पता है? आप जब भी पतंग उड़ाते हो उसकी डोर आपके हाथ में होती है, और जब पतंग इधर गिरने की कोशिश करता है तो आप उसको इधर खींचते हो डोर को, और जब पतंग इधर गिरने की कोशिश करता है तो डोर को आप इधर खींचने की कोशिश करते हो और पतंग को गिरने से बचाते हो। और पतंग पता है क्या सोचता है? पतंग ये सोचता है कि मेरे ऊपर इतनी बंदिशें क्यों है, मेरे ऊपर इतनी पाबंदियां क्यों है, क्यों ना इस डोर को काट दिया जाए, मुझे स्वतंत्र आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। बट बच्चों, आप एक बात सोच के देखो, जब वो ही पतंग कट जाती है तो 10 मिनट बाद कहां मिलती है? 10 मिनट बाद किसी कचरे के ढेर में मिलती है या फटी हुई मिलती है। वैसे ही आपकी लाइफ है। आप लोग क्या सोचते हो कि मेरे को गुरुजी ने, हम जैसे ही आप गलत रास्ते पे जाते हो तो या तो आपके पेरेंट्स टोकते हैं आपको कि नहीं बेटा देखो इधर नहीं जाना, वो गलत रास्ता है, या गुरुजन टोकते हैं आपको कि नहीं बेटा उधर नहीं जाना, आपको ये गलत रास्ता है आपके लिए। और आप लोग पता है क्या सोचते हो कि मेरे को क्यों टोक दिया, मेरे को गुरुजी ने क्यों बोल दिया ऐसी बात कि मैं इधर नहीं जा सकूं। आपको इस बात का पता नहीं है कि आपके लिए आपने जो रास्ता चुना है वो सही नहीं है। आपके गुरुजी को, आपके माता पिता को, आपके बुजुर्गों को उस रास्ते का पता है कि वो रास्ता कैसा है। इसलिए अपने से बड़े बुजुर्गों, माता पिता और गुरुजनों के द्वारा बताए हुए पथ पर चले। उस पतंग की तरह उनसे अपनी डोर को कटाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस दिन आप अपने माता पिता और गुरुजनों से उस डोर को छुड़वाने की कोशिश करोगे तो पतंग की तरह आपकी लाइफ भी हो जाएगी बेटा।
इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे, अभिभावकों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके बच्चों को, पढ़ाई में 2 नंबर कम आ जाए कोई बात नहीं है, बट व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है। व्यवहारिक ज्ञान आपको परिवार से ही मिलता है। इसलिए बच्चों, गुरुजनों का कहना मानो, माँ बाप का कहना मानो, उनके द्वारा बताए गए पथ पर चलो। एक बार सुने, बाहर से पधारे हुए अभिभावकों, बच्चों को माता सोनी परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।